So hello class. In today's lecture we are going to study about the another unit which is known as traffic engineering, right? So let's start traffic engineering. Okay. So let's start the topic traffic engineering. Okay. So first of all we'll see how the traffic engineering has been categorized. So traffic engineering has been categorized into three categories. Number one is traffic characteristic. Second one is traffic studies and analysis, and third one is traffic control system. So first of all we'll study about the characteristic, then we'll study about the studies and analysis, and then last is control system, how to control the traffic. Okay, so first of all we'll know the characteristic of the traffic. First we understand the characteristic of the traffic, like the characteristic which are by the road users or the vehicular basis, vehicular reaction. Okay, and in second the traffic studies and analysis will study and analyze the time of I will see about the timing and time taken by the vehicle from one position to another position, and we'll discuss about the delays, why the delays has been happened. Okay, so this will be studied under the traffic studies and analysis, and at last we'll see the control system, like the what is the cycle time, how to control the traffic, what are the green time, red time, amber time. So at last we will discuss about control system. Okay, so let's start the topic. So traffic engineering, as I said earlier, that it has been categorized into three categories: characteristic, study analysis, and traffic control system. First we'll study about the characteristic. So the traffic characteristic has been categorized into two main component. Number one is road user characteristic and second is vehicular characteristic, right? So what are the road user characteristic? So what are the tendency of the road user? How the road user characteristic? So it's of physical, mental, environmental, and psychological. The four most important factor about the road user characteristic. And how the vehicular characteristic is further classified into two categories. Number one is static, another one is dynamic. In a static we can say weight and dimension. Okay, and in dynamic what power, speed, and braking test. So mainly we'll study about these factors. Okay, so first of all we'll study about the braking test. What is the braking test? Why the braking test has been done? Okay, so first of all we can say that the braking test is done. Braking test is, why it is done? It is to find out the skid resistance. स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रेकिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ओके, ये जो हमारा स्किड रेजिस्टेंस है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से, स्मॉल एफ से. ठीक है, तो हम करते क्या है कि ब्रेकिंग टेस्ट में हम स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब हम स्किड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट है उसमें से एक, हम इनमें से कम हमें दो फैक्टर्स की ज़रूरत आएगी जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, जिसको हम एस या एल से डिनोट करते हैं. सेकंड हमारी स्पीड, एंड थर्ड वन इज़ एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन. ठीक है, यानी कि स्मॉल टी. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ वी फाइंड स्किड रेजिस्टेंस. It's very easy, basic concept of class 12th. So let's start and take an example. I take an example of in the form of question. So what is the question is, if the braking distance is 10 meter. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी हम मान लेते हैं यस मान लो या यल मान लो, जो भी है, एस और एल की वैल्यू कितनी है, सपोज 10 मीटर है. ठीक है,
इनिशियल स्पीड इज़ 30 kmph, v की वैल्यू कितनी है 30 kmph। ओके, देन फाइंड t, हमें जो है एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेक एप्लीकेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि एस हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अभी एक, इसके पहले हम लोगों ने जब यूनिट 2 पढ़ी थी तो यूनिट 2 में हमने एक फैक्टर पढ़ा था जिसको हम बोल रहे थे SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। What was the lag distance? The lag distance was v into t and braking distance was what? V square upon 2gf. Okay. So if we calculate the value of skid resistance in this f, if we find the value of f, so we can take this equation. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि s फॉर्मूला जो है हमारे पास s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gf, या फिर हम इसको एल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमें s की वैल्यू दी है वो क्वेश्चन में 10 मीटर ऑलरेडी देखा, तो s की जगह पे हम 10 रखेंगे, v की जगह पे हमें क्या रखना है 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू एफ, राइट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, f की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज हमें नोन है, f की वैल्यू हमें निकालनी। तो यहाँ से f की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.35। तो एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया फाइंड आउट करने का स्किड रेजिस्टेंस, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हमें s की वैल्यू दी हुई है, v दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अपनी सूटेबिलिटी के बेसिस पे स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जिस तरीके का क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी उसी अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ द इनिशियल स्पीड इज़ 40 kmph, इफ़ इनिशियल स्पीड इज़, सपोज़ कि हमने इनिशियल स्पीड जो है 40 kmph मान लिया है, ओके, v, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन t इज़ 1.8, t इज़ 1.8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएं जहाँ से हम f की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ अगर हमने s इज़ इक्वल टू जिसके पहले अप्लाई किया था v स्क्वायर अपॉन 2gf अगर हम लगाएं तो v तो हमें पता है, f हम निकाल लेंगे, g हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक और वैल्यू नहीं पता है जो कि s है, ठीक है। तो या तो हम फिर s की वैल्यू को फाइंड आउट करें, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, बेसिक जो हमारे पास क्लास 12th में हमने जो फिजिक्स के फार्मूला हैं, जैसे हमने इक्वेशन पढ़ा है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमने फार्मूला पढ़ा है s इज़ इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। और हमने फार्मूला पढ़ा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों फार्मूलाज की हेल्प लेते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है 40 kmph, इनिशियल स्पीड कितनी है 40 kmph, ठीक है। और फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड, अब देखो यहाँ पर हम जो फाइनल स्पीड है उसको ज़ीरो लेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या है, ब्रेक एप्लीकेशन हुआ है। तो जब हमने गाड़ी चल रही थी इनिशियल स्पीड तो हमने मान लिया कि v, मान लो u, कुछ भी मान लो, ठीक है, v मान लिया। और जब ये रुकी ब्रेक एप्लीकेशन के बाद भाई व्हीकल हमारी रुकेगी, तो रुकेगी तो उसका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, फाइनल ब्रेक रोकने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी v है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है ना। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। फार्मूला हमारा क्या है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये फार्मूला हमने लिया। फाइनल स्पीड को हमने ज़ीरो मान लिया, u इज़ इनिशियल स्पीड प्लस a इंटू टी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, u इज़ इक्वल टू माइनस ए टी लिख सकते हैं, ठीक है।
यू इज इक्वल टू माइनस ए डी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें यही ए की वैल्यू चाहिए, हमें यू पता है और टी पता है, तो हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यू की जगह पे हमने रख दिया 40 और टी की जगह पे हमने रख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.8 और ये माइनस का साइन। ये हमने एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लिया और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आ गई है -6.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी आ गई है ए की। देखने की बात ये है कि यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू आई है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, रिटार्डेशन है। ओके, तो हमने यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू हमने निकाल ली, हमें फाइनली क्या निकालना है, एफ़ निकालना है। ठीक है, एफ़ निकालना है। फिर हम अनदर इक्वेशन लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वेयर वी इज़ फाइनल स्पीड, यू इज़ व्हाट, यू इज़ suppose v square minus u, okay, so if I am taking this, so I can say that 1 minute 0 माइनस u जो है हमारा क्या है 40। ओके, so take it as 40 is equal to 2 into a. What we have calculated, the value of a is -6.17 into s. Okay, so this minus cancel and we can find out the value of s here, and the value of s is 10 meter. The value of s is 10 meter after the solve of this equation. Okay, so we have calculated the value of s. Now find out the value of what, find out the value of f. So we know s is equal to v square upon 2g into f, where s is 10, v is what, v is 40, so 40 into one more thing, this is in meter per second, so changes into meter per second. ठीक है ना, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा हमको, जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू एफ हमें कैलकुलेट करना है। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू 1000 अपॉन 3600। ये हमारे न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 9.81 इंटू एफ। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एफ़ की, जो आ रही है 0.629। ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन which is based on the skid resistance. Let's move to the next one. Okay, so next one is traffic studies and analysis. This was all about the traffic characteristic, which is very less part. Now we are moving to the traffic studies and analysis. So let's study about it. ट्रैफिक स्टडीज़ एनालिसिस, सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जानेंगे जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। ये टर्म्स हम अक्सर यूज़ करेंगे। पहला टर्म है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम। व्हाट इज़ ट्रैफिक वॉल्यूम? सो ट्रैफिक वॉल्यूम किसको कहेंगे? तो it is the number of vehicle crossing a section of road per unit time at any selected period. Like मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई रोडवे है, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक सेक्शन बना लिया। इसको सपोज कोई भी एक सेक्शन ले सकते हैं हम किसी भी रोडवे पर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें जब एस्टिमेशन करेंगे तो पर यूनिट टाइम में देखेंगे, पर यूनिट टाइम में इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, पर यूनिट टाइम में हाउ मेनी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड एज ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, इज कॉल्ड एज ट्रैफिक वॉल्यूम।
याद रहे कि एक निश्चित समय के लिए ही होना चाहिए, किसी भी सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए. ओके, सो दिस कैन बी मेजर इनटू व्हीकल पर आवर और वी कैन से व्हीकल पर डे. ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि एक घंटे में कितना नंबर ऑफ व्हीकल उस पर्टिकुलर सेक्शन से क्रॉस किया, या फिर ये भी मेजर कर सकते हैं कि एक दिन में उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल जो है रहे हैं. ओके, तो ये हमारी वैल्यू हो गई ट्रैफिक वॉल्यूम की. ओके देन, ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया. नाउ मूविंग टू द मेथड ऑफ मेजरिंग द ट्रैफिक वॉल्यूम. हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम. किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम को. तो इसे हमें कैलकुलेट करने के दो मेथड है, मैनुअल मेथड है और मैकेनिकल मेथड है. तो मैनुअल मेथड में मैनुअली हम एक टीम फॉर्म करेंगे. ठीक है, ये टीम हमारी रहेगी और ये टीम क्या करेगी, मैनुअली चेक करेगी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे हैं. तो वो एक हम टीम बनाते हैं 6-8 लोगों का, और उसमें हर एक पर्सन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लाइक किसी को 2 व्हीलर चेक करना है. जैसे हमने मान लीजिए कि कोई भी 1 घंटे का स्लॉट ले लिया. सपोज़ मान लीजिए कि हम 10 AM से लेके 11 AM का स्लॉट ले रहे हैं. ठीक है, तो हम इस 10 से 11 के शिफ्ट में ये चीज़ को देखेंगे कि हमने और ये सेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग टीम मेंबर जो होंगे वो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, एक बंदा इसमें से ये चेक करेगा कि हाउ मेनी 2 व्हीलर हैज़ बिन पास्ड. फिर एक बंदा ये चेक करेगा कि हाउ मेनी रिक्शास या कार या बस ट्रक. ठीक है, वो इस तरीके से सब जो है वो अलग अलग जो है काउंट करेंगे. ठीक है, और काउंट करने के बाद वो उसको मैनुअली कैलकुलेट करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम को. ठीक है, दूसरा मेथड है हमारे पास मैकेनिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड में हम किसी डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं. वो हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर हो सकता है, या रडार डिटेक्टर होता है, या मैग्नेटिक डिटेक्टर होता है. तो ये हमारे सेंसेशंस के माध्यम से, सेंसर इसमें लगे होते हैं, तो उनमें जो फ्लक्चुएशन आता है उसके माध्यम से हम ये चीज़ को काउंट कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ़ व्हीकल उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे क्रॉस किया है. तो हम वहाँ पर सेंसर को फिट कर देते हैं और जब कोई व्हीकल पास करते हैं तो वो हमें इंडिकेशन देता है. तो इसके लिए वहाँ पे टीम मेंबर को उस स्पॉट पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. वो जहाँ पे भी उनका जो भी वो एक अपना वर्क प्लेस बनाएंगे वहाँ पर आसपास नियर बाई एरियाज़ में, तो वो वहाँ से वो सेंसर जो है उन्हें रीडिंग दे देगा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी, तो आई कैन से कि मैनुअल जो है वो हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है रादर देन अ मैकेनिकल डिवाइस. बिकॉज मान लीजिए कि अगर हमारा रडार या कोई भी मैग्नेटिक डिटेक्टर है और अगर वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़राब हो गया तो हमारा जो डेटा है वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है. दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास एक ही लेन, मतलब सपोज़ मान लीजिए ये लेन है और उस सेम क्रॉस सेक्शन पे अगर हमारे एक साथ कई सारे नंबर ऑफ़ व्हीकल ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो उसमें ये जो सेंसर है हमारा ये क्या सही तरीके से रिएक्ट करेगा या नहीं, इसके बारे में हम कुछ अभी कह नहीं सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारे मेथड्स हो गए जो हमारे ट्रैफिक वॉल्यूम को मेज़र करते हैं. ओके, अब बात तो आ गई मेज़रमेंट, हमने वॉल्यूम को मेज़र कर लिया. अब अगर बात आ गई कि हम वॉल्यूम को शो कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करने के बाद इसको शो करें, तो शो करने के लिए हम उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन हम उसका कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया क्या, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का. ठीक है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का. इसमें हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ व्हीकल इन अ ईयर डिवाइडेड बाई 365. क्योंकि ये हमारा डेली ट्रैफिक है तो हम ये देखेंगे कि पूरे एक साल में कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं और उसको हम क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक. ठीक है, नंबर ऑफ़ व्हीकल इन अ ईयर अपॉन 365, ये फार्मूला आ गया. ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ से एवरेज डेली ट्रैफिक अगर निकालने की कोशिश करें, अगर हमें डेली ट्रैफिक निकालना है तो अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ व्हीकल इन अ वीक अपॉन 7. ठीक है, एक वीक में कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल जा रहा है उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा टोटल वॉल्यूम का. ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम का. अच्छा, अब आ जाते हैं हम रिप्रेजेंटेशन में. एक है हमारा ट्रेंड चार्ट. ठीक है, अब ट्रेंड चार्ट में हम किस तरीके से इसको करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड चार्ट बना लिया. यहाँ पर इस एक्सिस पे हम ट्रैफिक वॉल्यूम को दिखा रहे हैं और इस एक्सिस पे हम ईयर को दिखा रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए हमारा डेटा हो गया 2015, 16,
17, 18, सपोज इस तरीके से डेटा हो गया, और ये हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया 500, 1000, 1500, ठीक है, सॉरी, सपोज मान लीजिए ऐसे है, तो ये हमें उस पर्टिकुलर ईयर पे ग्रोथ बताता रहेगा कि कितना हमारा ग्रोथ जो है वो हो रहा है पर ईयर, ठीक है। ये कौन शो करेगा? ट्रेंड चार्ट, ओके। तो ट्रेंड चार्ट हमारा क्या करता है? ट्रेंड चार्ट जो है हमारे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ओवर द ईयर, ठीक है। जैसे जैसे हमारा ईयर पास होता है वैसे वैसे ये जो हमारा ट्रेंड चार्ट होता है वो ये शो करता है कि कितना जो नंबर ऑफ़ व्हीकल है वो बढ़ा है या घटा है, ठीक है। पर होता क्या है कि जितने भी ट्रेंड चार्ट को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम है वो हमेशा राइज हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं जब हम फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रोड, जैसे रोड हमारी जो एग्जिस्टिंग रोड होती है तो उनके फर्दर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर एक्सपेंशन अगर हमें करना है या प्लानिंग करनी है तो हम उसको डिज़ाइन या रेगुलेट कर सकते हैं ट्रेंड चार्ट की हेल्प लेके, ठीक है। क्योंकि वो एक तरीके से हम देखें तो फोरकास्टिंग हो जाएगी हमारी। अगर हमारे पास पिछले कुछ सालों का डेटा होगा तो हम उस पर पर ईयर ग्रोथ एक फाइंड आउट कर सकते हैं और एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेके हम उसकी फोरकास्टिंग करके उसको फर्दर जो हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन होने वाला है उसके लिए हम वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड चार्ट के बाद आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट क्या होता है? तो वेरिएशन चार्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है जो भी हमारे आवरली, डेली या फिर जो हमारे सीजनल वेरिएशन होते हैं उनको शो करता है, ठीक है, वेरिएशन चार्ट, ठीक है। अच्छा, जो वेरिएशन चार्ट होता है वो हमारा या तो घंटे के हिसाब से होगा या तो डे के हिसाब से होगा या फिर हमारे सीज़न के हिसाब से होगा। तो हमें अगर कैलकुलेट करनी है पीक ट्रैफिक, तो पीक ट्रैफिक हमारा कब होता है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हमने डेली वेरिएशन लिया तो डेली वेरिएशन में क्या होगा, हमने पूरे दिन भर का डेटा लिया, तो हम दिन भर का जब डेटा लेंगे, अगर हमने कोई एक टाइम स्लॉट लिया, सपोज़ अगर हमने मॉर्निंग का 1 आवर लिया और इवनिंग का 1 आवर लिया, या फिर सिर्फ मॉर्निंग का 1 आवर ले रहे हैं या फिर किसी भी टाइम हमें 1 घंटा बस ले रहे हैं, तो हम उसमें पीक वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेटाज पूरे दिन के नहीं हैं। सिर्फ 1 घंटे को एस्टिमेट करके उसी को पीक मान लेना तो सही नहीं है। तो फिर हम जब अगर हमें पीक ट्रैफिक पता करना होगा कि कौन से टाइम स्लॉट के बीच में ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल जो हैं वो उस रोड पर चलती हैं, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? डेली से। अगर हमने पूरे दिन की वैल्यू ली हुई है तो हम ये चीज़ को देख सकते हैं कि 10 से मान लीजिए हमने मान लिया 11, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो फिर हम इस तरीके से देखेंगे कि कौन से टाइम स्लॉट में कौन से 1 घंटे में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो हैं वो क्रॉस किए हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पीक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। वॉल्यूम फ्लो डायग्राम क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल एंटरिंग द ट्रैफिक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हीकल गोइंग आउट ऑफ द ट्रैफिक। तो हमने ये ले लिया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई जंक्शन है, ठीक है, ये हमारा कोई जंक्शन है और हमने इसको कोई एक सेक्शन मान लिया। कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल इस पे आ रहे हैं और कितने इससे डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कितने दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। ट्रैफिक फ्लो के माध्यम से हम एक वेरिएशन दिखा सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। व्हाट इज़ 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चार्ट समझा दूँगी आपको। ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली है ना, वो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम लिया है इसका परसेंटेज में, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने वैल्यू ली है वो नंबर ऑफ़ आवर इन 1 ईयर विद ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर 20-20 का इंटरवल ले लिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। यहाँ पर भी हमने 10-10 का वेरिएशन ले लिया है। तो ये जो हमारा 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम है ये हमारी वैल्यू है 30th, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम क्या होती है। ओके, so 30th highest hourly volume, it is that hourly volume
विच विल बी एक्सीडेड ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू से सिर्फ 29 टाइम्स ही वो रेस कर सकता है। ठीक, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। इसी को हम एक और नाम से बोलते हैं डिज़ाइंड आवरली वॉल्यूम। इसको एक और नाम बोलते हैं डिज़ाइंड आवरली वॉल्यूम। ओके ओके, देन मूविंग टू द स्पीड स्टडी। वाई स्पीड स्टडी हैज़ बिन डन। ठीक है, स्पीड स्टडी क्या होती है? तो स्पीड स्टडी में सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म है हमारा ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक है, हम जानते हैं ट्रैवल टाइम के बारे में। v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि अगर v की वैल्यू ज़्यादा है तो t कम होगा, और अगर v की वैल्यू कम है तो हमारा t की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, तो ओके, so we know that the value of if we will raise the v, t will automatically reduce। ठीक है, अगर हमारा ट्रैवल टाइम ज़्यादा होगा इसका मतलब कि हमारी वेलोसिटी कम रही होगी। अगर हमारा ट्रैवल टाइम कम है तो इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी। तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि स्पीड और ट्रैवल टाइम में हमारा रेसिप्रोकेशनल रिलेशनशिप है। ठीक है, अच्छा, ट्रैवल टाइम हमारी दो रीज़न से कम हो सकती है। ठीक है, एक तो स्पीड का फ़र्क पड़ता है, दूसरा हमारा जो भी रोड की एफिशिएंसी होती है उसकी वजह से। ठीक है, नाउ मूविंग टू द स्पॉट स्पीड। व्हाट इज स्पॉट स्पीड? तो स्पॉट स्पीड इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, स्पॉट स्पीड हमारा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है व्हीकल की किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ओके, सो एंड नाउ व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? Now what is average speed? So the average speed is the average of the spot speed of the all vehicle। ठीक है, जितने भी हमारे पास स्पॉट स्पीड आएंगी हम उन सबका क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू ले लेंगे, तो वो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्पेस मीन टाइम पे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पेस मीन टाइम? तो वी एस इज इक्वल टू, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई द फार्मूला वी एस इज इक्वल टू 3.6 dn अपॉन ti, where d is what? d is length of the road। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। n is what? नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक, ये भी हमें पता रहेगा। t is what? ऑब्जर्व ट्रैवल टाइम। एंड vs is what? vs is स्पेस मीन स्पीड। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम टाइम मीन स्पीड पे। तो टाइम मीन स्पीड vt को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास vi अपॉन n। ये हमारा समेशन होगा जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी सबकी। तो टाइम मीन स्पीड हमारा क्या होता है? तो हमने उसका फॉर्मूला देख लिया कि ऑब्जर्व जो भी हमारा वैल्यू होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का, वो हम उसको लेके सारा सम अप कर देंगे। ओके, मूविंग टू द रनिंग स्पीड। व्हाट इज़ रनिंग स्पीड? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल इन द रनिंग टाइम। लाइक इसमें हम जितने भी डिलेज होते हैं, जो भी हमारे स्टॉपेज होते हैं, उन सबों को हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। सपोज़ अगर हमने ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 60 मिनट लिया, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें 60 मिनट लग रही है ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाने में, तो मान लीजिए कि इसमें हमारा 5 मिनट्स का हॉल्ट था, और सपोज़ 10 मिनट डिले जो हुआ वो हमारा ट्रैफिक की वजह से हो गया, यानी कि टोटल 15 मिनट तो तब हुआ जब हमारी व्हीकल स्टॉप थी। तो जो हमारी रनिंग स्पीड होती है, अब रन कितना हुआ? 45 मिनट रन हुआ, क्योंकि 15 मिनट तो स्टॉप थी। तो रनिंग स्पीड जो होगी वो हमारी वो डिस्टेंस जो कि हमारा रन हुआ रहेगा वो हमारी हो जाएगी रनिंग स्पीड। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ओवरऑल स्पीड की या जर्नी स्पीड की। तो ओवरऑल स्पीड हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस लेंगे अपॉन टोटल टाइम लेंगे।
टोटल टाइम में हमारे डिलेज और स्टॉपेज ये दोनों भी आएंगे, इंक्लूडिंग डिलेज एंड स्टॉपेज। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल स्पीड और जर्नी स्पीड। ठीक, अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि हम इस स्पॉट स्पीड का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक कर्व बनाना होगा जिसका नाम है कुमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमने यहाँ पर एक कुमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया हुआ है। सबसे पहले तो ये हमारे दो एक्सिस हैं जिस पे इसमें हमने कुमुलेटिव वैल्यू ली हुई है परसेंटेज में। ठीक है, कुमुलेटिव वैल्यू की, इस पे स्पीड एट और बिलो विच द व्हीकल्स आर मूविंग। तो यहाँ पर हमने एक कर्व बनाया। जो ये कर्व का पीक होगा वो हमारे अपने आप में वो 100% वैल्यू होगी। अगर हम 98% की बात करें तो 98% हमारा ये वैल्यू हो जाएगी 100 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये हो गई हमारी 98 परसेंटाइल स्पीड। अब अगर हम बात करें 85th परसेंटाइल स्पीड, तो 85 जो होगा वो 98 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये हमारी 85th परसेंटाइल स्पीड हो जाएगी। अगर अब हम बात करें कि 50th परसेंटाइल स्पीड, तो 50th परसेंटाइल स्पीड जो होगा वो हाफ पे होगा, तो ये हो गई हमारी 50th परसेंटाइल स्पीड। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें 15th परसेंटाइल स्पीड, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 15th परसेंटाइल स्पीड की, जो कि सबसे लोअर वैल्यू है। तो ये हमने एक कुमुलेटिव वैल्यूज़ के लिए बना दिया। ठीक है, सारी कुमुलेटिव वैल्यूज़ हैं इसमें, जिसमें 98th परसेंटाइल स्पीड, 85th परसेंटाइल स्पीड, 50th एंड 15th परसेंटाइल स्पीड इंक्लूडेड है। ये हमारा कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। अब हम ये जानेंगे कि ये 98 परसेंटाइल स्पीड, 85th परसेंटाइल स्पीड, 50th परसेंटाइल स्पीड और 15th परसेंटाइल स्पीड क्या होता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखिए सबसे पहला आता है टर्म हमारा 98 परसेंटाइल स्पीड। तो व्हाट इज़ 98 परसेंटाइल स्पीड? तो हम ये कह सकते हैं कि 100% में से 98% व्हीकल्स जो हैं वो हमारे एक डिज़ाइन स्पीड पे चल रहे हैं। वो डिज़ाइन स्पीड क्या होगी, हम मान लेते हैं, एक जस्ट अ वैल्यू मान लेते हैं कि वो डिज़ाइन स्पीड है हमारी 80 kmph। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% व्हीकल्स में से जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल उस जगह से निकल रहे हैं उसमें से 98% जो है वो डिज़ाइन स्पीड तक हैं या फिर उससे कम है। ठीक है, यानी उनकी स्पीड जो है वो या तो 80 kmph है या फिर 80 kmph से कम है। अब 100% में से कितने परसेंट वैल्यू बची हमारी 2%, क्योंकि ये 98 है। 100 माइनस 98, 2% व्हीकल्स हमारे जो हैं जो क्या कर रहे हैं, इस 80 kmph की स्पीड को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो 98 परसेंटाइल स्पीड का मतलब ये हो गया कि 98th परसेंटाइल स्पीड हमारी वो डिज़ाइन स्पीड है, ठीक है, जिसके नीचे हमारे सारे व्हीकल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। 98% ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, रेस्ट 2% जो है वो उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। ये वैल्यू हो गई हमारी 98 परसेंटाइल की। सिमिलरली अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ 85th परसेंटाइल स्पीड, तो वी कैन से कि 85% ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग, सपोज़ मान लीजिए कि वो स्पीड है हमारी 60 kmph, तो हम ये कह सकते हैं कि 85% ऑफ द व्हीकल्स आर मूविंग at or below 60 kmph. Rest 15% are moving more than 60 kmph. ठीक है, वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। सेम चीज़ें हमारे लिए 50th परसेंटाइल स्पीड की हो जाएगी। तो 50th को हम कहेंगे कि 50% ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो हमारी सपोज़ 45 kmph पे चल रहे हैं और रेस्ट ऑफ द 50% इसको क्रॉस कर रहे हैं, इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम 15 परसेंटाइल स्पीड के लिए ये बोलेंगे कि 15% व्हीकल्स जो हैं वही लिमिट में चल रहे हैं, बाकी कितने बचे, 85% जो हैं वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉसिंग द लिमिट, ये इसका मतलब हो गया। अब अगर हम सेफ्टी वाइज बात करें तो जो हमारी 85 परसेंटाइल स्पीड होती है वो हमारे पास अपर सेफ स्पीड होती है, मतलब लिमिट होती है। अगर हमें ट्रैफिक का रेगुलेशन करना है तो हमें कम से कम 85 परसेंटाइल स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मीडियन स्पीड की बात करें तो मीडियन स्पीड हमारा किस पे अचीव हो जाएगा, 50th परसेंटाइल स्पीड पे। और अगर हम लोअर स्पीड की बात करें तो लोअर जो होगा हमारा 15 परसेंटाइल स्पीड, और ये हम मान लेते हैं, मान लो कि 30 kmph है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी लोअर वैल्यू है, इससे नीचे की स्पीड पे हम अलाउ नहीं करेंगे उस रोड पे, क्योंकि अगर कोई व्हीकल इससे ज़्यादा नीचे चलती है तो सपोज़ अगर सारे नंबर ऑफ़ व्हीकल हमारी 30 से नीचे चलने लगेगी तो जो भी वो जंक्शन होगा या जो भी वो जगह होगी वहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ट्रैफिक वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेगा। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा लोअर लिमिट को भी ले नहीं सकते हैं। ओके, सो ओके, नाउ हम इस पर एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा 98 परसेंटाइल स्पीड मतलब क्युमुलेटिव स्पीड कर्व पे है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन ये ले लिया कि इस क्वेश्चन में हमें दो टेबल दिया हुआ है, एक स्पीड रेंज की वैल्यू दी है और एक नंबर ऑफ़ व्हीकल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने स्पीड रेंज मान लिया है kmph में, ये वैल्यू है 0 से 10 के बीच में, और हम ये कह सकते हैं कि 0 से 10 किलोमीटर पर आवर के बीच में कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल चल रहे हैं हमारे 12, ठीक है। उसी तरीके से 10 से 20 के बीच में कितने चल रहे हैं 18, 20 से 30 के बीच में कितने चल रहे हैं 68, 30 से 40 में चल रहे हैं 69, 40 से 50 में चल रहे हैं 204, 50 to 60 में चल रहे हैं 255, 60 से 70 में चल रहे हैं 119, 70 से 80 में चल रहे हैं 43, 80 to 90 के बीच में चल रहे हैं 33, 90 to 100 के बीच में चल रहे हैं 9। तो इस स्पीड रेंज के बीच में इतने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है चल रहे हैं, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 टेबल बनाया हुआ है, और ये तीनों टेबल है हमारा एक एवरेज स्पीड का, ये वैल्यू हो गई हमारी एवरेज स्पीड की, एक तरफ हमने परसेंट फ्रिक्वेंसी ली और एक तरफ हमने क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ली है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालेंगे, सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का कॉलम बनाएंगे, तो 0 से 10 पहला स्पीड रेंज है, तो 0 से 10 का एवरेज क्या हो जाएगा 5। उसी तरीके से अगर हम बोलें कि 10 से 20 तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 15। फिर हम बोलें कि 20 to 30 तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 25। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सारी वैल्यू जो थी एवरेज स्पीड की ले ली, ठीक, एवरेज स्पीड ले लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं परसेंट फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। अब अगर हमें परसेंट फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये इस टेबल पे जाना पड़ेगा। ये हमारे पास कितना है 12 नंबर ऑफ़ व्हीकल, यही है हमारी ये वैल्यू 5, 5 में 5 की एवरेज स्पीड पे कितने चल रहे हैं 12, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले तो इन सारे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को ऐड कर लिया, टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल को, तो वो क्या आ गया हमारा 850। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू फ्रिक्वेंसी जब निकालनी है तो कितना नंबर ऑफ़ व्हीकल था, जिन 5 जिनकी एवरेज स्पीड 5 है, तो कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल थे 12, कितने में 850 में, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.41। ओके, नाउ 15 वैल्यू पे आ जाओ। तो ये जो हमारा 10 से 20 की बीच की वैल्यू है, यही वैल्यू हमारी 15 कहलाएगी, ठीक है। कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल चल रहे हैं 18। तो अगर हमें इसे परसेंट फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी तो हम ऐसे निकालेंगे कि 80 नंबर ऑफ़ व्हीकल कितने में चल रहे हैं 850 में, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 यानी ये इसका एवरेज कितना हो जाएगा 25। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ रहा है हमारा 68, कितने में 850 में, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो परसेंट फ्रिक्वेंसी निकाली हुई है, ये सारी वैल्यूज़ जो है हमने उसी पे निकाली हुई है, ठीक है, इसी तरीके से करके। अब हम आ जाते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे। कुमुलेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारी पहली वैल्यू है 1.41, ये 1.41 होगी, ठीक है। अब हमें कुमुलेटिव वैल्यू लेनी है, तो इसके बराबर की वैल्यू देखेंगे। अब हम सेकंड टेबल पे आएंगे तो हम इसके बराबर की वैल्यू देखेंगे क्या है 2.12 है, ठीक है। और कुमुलेटिव का मतलब हो गया कलेक्टिव फॉर्म में वैल्यू को लेना, तो ये 2.12 हो गया और इसके ऊपर क्या है हमारा 1.41, हमने इसको ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 3.53, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें क्या करना है, जब हम तीसरी वैल्यू ले रहे हैं, तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये तीसरे टेबल में हमें वैल्यू लिखना है, तो हम इसके बराबर में जाएंगे, ये कितना है हमारे पास 8.90, इसके ऊपर क्या क्या है 2.12, 1.41, हम ये तीनों ऐड करेंगे,
आ जाएगा 11.53, तब हम वो वैल्यू लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हम चौथी वैल्यू पे जाएंगे यहाँ पे, तो हमें इसके बराबर और फिर इसके ऊपर की सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। तो इस तरीके से हमने कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अच्छा अब हमने टेबल बना लिया, लेकिन हमें इससे क्वेश्चन में करना क्या है, 85th परसेंटाइल स्पीड निकालनी है। ठीक है, 85th परसेंटाइल स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है और जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब अगर हम यहाँ पे बोलें कि 85th परसेंटाइल स्पीड बताइए इस पे, तो क्या हम इसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, हमें एक रेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हमें रेंज दिया है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए हम मेथड जो अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, इंटरपोलेशन मेथड। अब ये इंटरपोलेशन हम करेंगे वैल्यूज़ को और एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 85th परसेंटाइल स्पीड। तो सबसे पहले हम इस कुमुलेटिव वैल्यू वाले कर्व में आएंगे और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 85 वैल्यू है ये किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो अगर हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करें ऊपर से, तो हमें ये रेंज जो दिख रहा है 76 से लेके 90 के बीच में। 85 तो 85 जो नंबर है वो हमारा 76 से 90 के बीच में आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके सीधे में एवरेज स्पीड ले लेंगे। 76 पे एवरेज स्पीड क्या है, 55, और 90 पे क्या है, 65। तो हम 76 जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर हम इसको x1 मान लेते हैं, और 90 जो लिखी हुई है उसको हम x2 मान लेते हैं। 55 जो लिखी है उसको y1 मान लेते हैं, 65 जो लिखी है उसको हम y2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इसी को हमें फाइंड आउट करना है। y1 की जगह पे क्या रखेंगे, 55 यहाँ से, y2 की जगह पे क्या रखेंगे, 65 माइनस y1 की जगह पे 55। अच्छा, इन ब्रैकेट नीचे हमारा क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 की जगह पे क्या रखेंगे, 90, x1 की जगह पे क्या रखेंगे, 76। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, और इन ब्रैकेट हमारा है x माइनस x1। अब ये जो x है, ये x वैल्यू हमारी क्या होगी, तो ये जो हमारी x वैल्यू है ना, वो x वैल्यू हमारी 85 है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, 85th परसेंटाइल स्पीड निकाल रहे हैं। अगर यही हम 98th परसेंटाइल स्पीड निकालते तो x की जगह पे 98 रखते, 15th निकालते तो x की जगह पे 15 रखते, 50th निकालते तो x की जगह पे 50 रखते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 85 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 76। तो ये हमारी वैल्यू जो होगी इस इंटरपोलेशन फार्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो y की वैल्यू आ रही है वो हमारे 61.4 किलोमीटर पर आवर के अराउंड आ रही है, यानी जो हमारी 85th परसेंटाइल स्पीड होगी वो हमारी होगी क्या, कितनी, 61.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 98th, ठीक है, 98th, 15th और 50th ये तीनों वैल्यूज़ जो है निकाल सकते हैं कि कितनी आ रही है, जैसा हमने इसमें इंटरपोलेशन मेथड लगाया बिल्कुल उसी तरीके से। ओके देन आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी समझने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आगे पढ़ेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।